کا انٹریکشن جو ہے وہ کیا رہا، کس طرح رہا، اس کی ساری تفصیلات جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کا دن جو ہے وہ سی ایم کے پی سہیل آفریدی لاہور میں مختلف جرنلسٹ کے ساتھ جو ہے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور مختلف انہوں نے گروپس کے اندر جو ہے وہ لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں. ہمیں پہلے جو ہے وہ دوپہر کو 1 بجے بلایا گیا تھا، لیکن اس کے بعد مجھے خاص طور پہ پیغام آیا کہ جی آپ صبح 10 بجے جو ہے وہ تشریف لے آئیں. اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ کہ اس سارے معاملے کو جو ہینڈل کر رہے تھے انہوں نے ماشاءاللہ لوکیشن ہی غلط بھیج دی. تو ہم جو ہے وہ ملاقات ڈیفینس کے گھر میں ہونی تھی، ہمیں ماشاءاللہ برکی روڈ کی ایک کسی فارم ہاؤس کی لوکیشن جو ہے وہ بھیج دی گئی. وہاں پہ ہم پہنچے تو نہ بندہ نہ بندے کی ذات. میں نے جب دوبارہ فون کیا تو انہوں نے کہا جی سوری، ہم نے آپ کو غلط لوکیشن بھیج دی، اور مجھے نہیں، میرے علاوہ کئی صحافیوں کو غلط لوکیشن بھیج دی گئی تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں آپ نے ڈیفینس آنا ہے. شدید دھند، بڑی مشکل سے گاڑی چل رہی تھی، تو خیر پھر آل دا وے جو ہے وہ ہم ڈیفینس آئے. وہاں پہ جب میں پہنچا تو سی ایم کے پی جس گھر میں یہ ملاقاتیں کر رہے تھے اس کے بالکل سامنے تھانہ تھا. تو میں نے کہا یہ تو بڑی جگہ چوز کیا آپ نے، بالکل تھانہ کے سامنے جو ہے وہ سی ایم کے پی جو ہے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. باہر ان کے گھر کے باہر جو ہے وہ پنجاب پولیس کے دستے وہاں پہ موجود تھے جو سیکیورٹی دینے کے لیے جو ہے وہاں پہ آئے ہوئے تھے. خیر میں جب گھر کے اندر داخل ہوا تو کئی کارکن جو ہے وہ ان سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو وہ ان سے ملاقات کر رہے تھے، تو ہم گھر کے اندر چلے گئے. وہاں پہ مجھ سے پہلے جو ہے وہ مختلف جرنلسٹ وہاں پہ آلریڈی موجود تھے. حبیب اکرم صاحب وہاں پہ موجود تھے، رائے ثاقب صاحب وہاں پہ موجود تھے، اجمل جامی صاحب وہاں پہ موجود تھے، عارف حمید بھٹی وہاں پہ موجود تھے. تھوڑی دیر کے بعد چودھری غلام حسین صاحب وہ بھی آ گئے، اور اس طرح مختلف صحافیوں کے آنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا. بہرحال اس کے بعد تقریباً کوئی ہمیں 10-15 منٹ میرے خیال میں شاید انتظار کرنا پڑا. اس کے بعد سی ایم کے پی جو ہے وہ تشریف لائے اور انہوں نے جرنلسٹ کے ساتھ انٹریکشن شروع کیا. میری اور ان کی گفتگو، ہماری نشست جو ہے جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، بالکل ساتھ ساتھ تھی. تو ہم نے اس انٹریکشن کو جو ہے وہ ریکارڈ بھی کیا ہے. اب اس انٹریکشن میں مختلف کوشچنس تھے مختلف ٹاپکس کے اوپر. اس انٹریکشن میں کیا گفتگو ہوئی ہے آپ پہلے وہ سن لیجئے، پھر اس کے بعد میں اس پہ انالیٹیکل گفتگو جو ہے وہ میں اس کے بعد کروں گا. سنیے مختلف سوالوں کے کیا انہوں نے جواب دیے ہیں. گنڈا پور صاحب کی آپ سے پہلے جب وہ اس عہدے پہ تھے تو چند ایسی ملاقاتیں ہوتی تھیں جس میں آرمی چیف بھی موجود ہوتے تھے. آپ کی غالباً ابھی تک کوئی ایسی انٹریکشن نہیں ہو سکی کہ جس میں وہ اور فیلڈ مارشل آپ دونوں ہی ایک جگہ موجود ہوں. تو بہت سے لوگ جب ان کی ملاقات ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ جناب آپ نے فلاں بات کی، آپ نے فیلڈ مارشل کو یہ کہا وہ کہا یا نہیں کہا. آپ نے کوئی ذہن میں لسٹ بنائی ہے کہ آپ کی جب فیلڈ مارشل سے ملاقات ہوگی تو آپ یہ بات ان سے کہیں گے؟ میں نے عمران خان صاحب کی لسٹ بنائی. عمران خان سے کیا مطلب؟ عمران خان صاحب سے جب ملوں گا تو، کیونکہ میں عمران خان صاحب سے جب بھی ملتا ہوں تو میں سب کچھ بھول جاتا ہوں. اچھا. ہاں، وہ اس کا روب اتنا زیادہ ہے اور اس کی پرسنالٹی ایسی ہے. نہیں لیکن آپ کے جو گلے شکوے ہیں کیا آپ وہ فیلڈ مارشل کے سامنے رکھنا چاہیں گے؟ ہاں ڈیفینیٹلی، جو صوبے کے مسائل ہیں وہ میں ضرور رکھوں گا. سیاست کے مسائل؟ سیاست کے مسائل خود حل کریں گے انشاءاللہ. اچھا سی ایم صاحب، آپ نے کہا تھا کہ آپریشن نہیں کرنے کی اجازت دیں گے، لیکن آپریشن تیرا میں کہا جا رہا ہے کہ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرون اٹیکس بھی ہو رہے ہیں. تو اس کے اوپر آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیونکہ اسی پر علی امین گنڈا پور صاحب کو بار بار عمران خان صاحب کی بھی ہدایات جاتی ہے کہ آپریشن رکوائیں. تو آپ کی اس کے بارے میں کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں، ہم نے جرگہ کیا، امن جرگہ، اس میں تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں اور ہمارے جو ہر مکتبہ فکر کے لوگ تھے، ہم نے ان کو مدعو کیا، ایک چھت تلے سب کو بٹھایا. 15 نکاتی ایجنڈا میں یہ بھی تھا کہ کولیٹرل ڈیمیج ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا اور ملٹری آپریشن جو ہے کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ تمام سیاسی پارٹیاں، تمام قوتیں جو خیبر پختونخوا میں ہیں اس پر ایگری ہوئے. ملٹری آپریشن تو صرف پہلے یہ ہمارا موقف تھا، ابھی پورے کے پی کے کی جتنی بھی سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں ان کا موقف ہے کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، تو مطلب نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر اب یہ کر رہے ہیں تو یہ اپنی بنا پر کر رہے ہیں، یہ بدماشی کر رہے ہیں. میں کیا گورنمنٹ اجازت دی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں. کے حوالے سے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ وہاں لوگ کمپنسیشن تک چکا ہے. نہیں، دیکھیں کمپنسیشن جو آلریڈی جو ہمارے انہوں نے وعدہ کیا تھا، ہمارے ایک بقا خیل کے لوگ ہیں، فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو پے کرنا ہے لیکن وہ پے نہیں کر رہی. ہم اپنی جیب سے پے کر رہے ہیں اور تقریباً 7.5 ارب روپے ہم اضافی پے کر چکے ہیں بقا خیل کے جو ہمارے متاثرین ہیں. اس طرح جو آئی بی اوز باجوڑ میں ہوئے
वहाँ से लोग निकले क्योंकि वो ड्रोन अटैक से डरते हैं कि मतलब हमारा कोलेटरल डैमेज ना हो तो फेडरल गवर्नमेंट उनको पे नहीं करती। मतलब ऑपरेशन भी ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ड्रोन अटैक्स भी ये कर रहे हैं, लोग भी हमारे तबाह हो रहे हैं, पैसे सूबाई हुकूमत दे रही है, ये हमें पैसे भी नहीं दे रहे इस तरह। तो फिर जो है अगर आप उनको पैसे देंगे तो ये ज़रूरी है कि आप जो सूबाई काबीना है उससे पास करेंगे, आफरीद साहब तो वो उस बिना पर हुआ इस सारे मामले में जो रूट कॉज है जिसके ऊपर डीजी आईएसपीआर ने पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पूरा एक चार्ट उन्होंने दिखाया था, वो ये था कि जनाब वहाँ पे ड्रग्स का नेक्सस मौजूद है सियासी पुशपनाही के साथ, और जिस तरह नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का कारोबार होता है, असलहे की स्मगलिंग होती है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं कि वहाँ पे ऑपरेशन किया जाए। बेहतर ना हो कि सूबाई हुकूमत खुद एक्चुअली वॉलंटियर करके कहे कि जी आइए बैठ के इन्हीं ड्रग माफिया के खिलाफ, इन्हीं नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के स्मगलर्स के खिलाफ जो है बैठ के एक्शन लेते हैं, ताकि रूट कॉज ही खत्म हो जाए, वजह ही ना रहे। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल होना चाहिए। ड्रग माफिया के खिलाफ हमने बेहतरीन कार्रवाइयाँ शुरू की है, बड़े मगरमच्छ को पकड़ा है, उसमें जो कॉल्स आई हैं वो हम बता नहीं सकते। अच्छा। बहरहाल मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारी जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ वहाँ पर घूमती हैं, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने हमारे लिए 100 साल के लिए वहाँ पर टैक्स फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया है। ठीक। मतलब 1947 से लेकर 2047 तक ये हमारे लिए कबायली अजला के लिए, क्योंकि हमने पाकिस्तान का साथ दिया था। अभी वहाँ पर जो है आप मतलब वो हमारा टैक्स फ्री जोन है। फाटा भी था और पाटा भी था। तो मर्ज हो गया ना सर? हाँ, पाटा पहले मर्ज हुआ था, अभी जो है फाटा मर्ज हुआ है। अभी जो 10 इयर्स का ट्रांजिशन पीरियड था हमारा, तो उसमें भी जो है इनको कहा गया था कि मतलब आप लोग ये सब कुछ करें। 100 बिलियन का वादा भी किया गया था, लेकिन उसमें जो है 700 अरब रुपए में अभी तक 168 अरब रुपए मिले। 532 अरब रुपए हमारा बकाया है वफाक। ठीक। वो कंपनसेशन जो सरताज अजीज रिपोर्ट में दिया था। अभी वहां पर जो ये सब कुछ हो रहा है जिसका आपने जिक्र किया, ये 2 महीनों से हो रहा है। ये कब मर्ज हुआ? कबायली अजला 2018 में। ठीक है, 2018 तक वहां कौन था, किसके अंडर था? ठीक। तो सालों से होता है। तो सीएम अब आप क्या वॉलंटियर करेंगे कि इस चीज को जड़ से उखाड़ा मैं तो जाए? पहले जो इल्जाम लगाया जा रहा है उसको क्लियर करना चाह रहा हूँ, फिर मैं आता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक। सालों से होता आ रहा है। ये जो फसलें वहां पर उगती हैं, इनकी सरपरस्ती में इनकी जेरी निगरानी उगती थी। 2018 के बाद भी, 2018 से पहले भी। जो बॉर्डर है वो मेरे साथ नहीं है, ये जो है अस्करी इदारे और फेडरल गवर्नमेंट के साथ है। वहां से जो स्मगलिंग होती है, चाहे वो डॉलर्स की हो, चाहे असली की हो, चाहे गाड़ियों की हो, चाहे XYZ जिसकी भी हो, वो इनकी निगरानी में होती है। मतलब वो निगरानी टाइट करे तो वो नहीं आ सकते, लेकिन अगर आ रही है तो उसमें जो है कोई मुलविस है। इन्होंने ये इल्जाम लगाया, मैंने ये कहा कि जिस अफसर की बॉर्डर्स पे ड्यूटी रही है उनके असासे जाहिर करें, ताकि पता लगे कि कौन कितने पानी में। आप में से शायद बहुत सारे दोस्त जो हैं वो सिगरेट पीते होंगे, इंपोर्टेड सिगरेट बैन है, आपको हर दुकान में मिल जाएगी। ये कहाँ से आ रही है? दुकानों पर छापे क्यों नहीं लगाए जा रहे? मतलब ये इलीगल है ना। हमारा अपना जो पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि तो आपने बात है ना, लॉ एंड ऑर्डर यार लाहौर में भी मिल रही है। नहीं, वो आप अपने सूबे की बात करें ना। मैं आपको आपका लॉ एंड ऑर्डर अगर सिचुएशन है तो वो आप समझ रहे नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मतलब बॉर्डर से अगर इंपोर्टेड सिगरेट आ रही है तो ये सुहेल अफरीदी लेकर नहीं आ रहा, ठीक, ये कोई और लेकर आ रहा है। आप नॉन कस्टम पेड गाड़ियों और ड्रग्स के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए तैयार? ड्रग्स के अगेंस्ट हम इतना एक्शन ले रहे हैं, ये 2 महीनों में जो एक्शन मैंने लिया है, इससे पहले जो है किसी ने नहीं लिया था, इंक्लूडिंग नॉन कस्टम पेड गाड़ियां। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जो हैं ये फेडरल हुकूमत की वजह के लॉ के अंडर हमें इजाजत मिली है। इस तरह नहीं है कि मतलब हम जो कितनी देर तक? अच्छा, 2047 तक। 2047 तक नॉन कस्टम पेड गाड़ियों नॉन कस्टम जरूरी तो नहीं है, मैं आपको बात बताता हूँ। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जो हैं अफगानिस्तान के बॉर्डर से नहीं आती, ठीक है, चमन से आती है। चमन से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक कितना रास्ता है, ठीक है, कौन वहां पर ड्यूटी दे रहे हैं, वहां पर आ रहे, आप वहां तक नहीं रोक रहे,
ठीक है, वो जो है वो एरिया, उस एरिया में चले जाते हैं जहां पर जो है हम उन पर हाथ नहीं डाल सकते, तो वहां पर तो अलाउड है, वहां तो चलती है। कीजिएगा, लेकिन अटक के पुल के ऊपर रोकी जाती है ना। पंजाब में नॉन कस्टम प्लेट गाड़ी नहीं घूम सकती, पकड़ी जाती है, एक्साइज वाले पकड़ते हैं। ये एक्सरसाइज आप भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, लेकिन आप, मुझे उसको आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि 2047 तक तो कम से कम इनको हाथ नहीं लगाया जाएगा। आप 4,758 अरब रुपए जो हमारा बकाया है आप वो दे दें और ये बंद हो जाएगा। वो दें, मेरे आपको बता, कोई तो कंपनसेशन हम अपनी आवाम को देना। एक स्पेसिफिक लोकेशन बार बार शेयर की गई जब आप लाहौर आ रहे थे, वादी तीरा में कुछ चर्च मेले की लोकेशन जो है वो वीडियोस बना के वो शेयर की, वो भी चल रहा है। आपने कहा कि मैंने एक्शन लिया ड्रग्स के ऊपर या वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि वो एक वीडियो थी बार बार शेयर की गई, देखें जी इसलिए कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है। भाईजान वहां पर मैंने तो आपको कहा कि हम ज़फ़रान लगाने वाले थे पूरी तिरा में, लेकिन इन लोगों ने जो है उस फार्मूले को फ्लॉप कर दिया, वहाँ कौम को उठाया और जो है वो चीज़ रफा दफा कर दी। ये जो है लोगों ने उगाई है वहाँ पर। मेरी बात सुने, ये 2 महीने से नहीं हो रहा, ये 100 सालों से ज्यादा से होता आ रहा है वहाँ पर। सीएम साहब, ये जो ऑपरेशन टीटीपी और दीगर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हुई, क्या ये बात दुरुस्त है कि आपकी इस हवाले से मल्टीपल मीटिंग्स कोर कमांडर से हुई और आपने ये बातें उनके सामने रखी, उनका फीडबैक या जवाब क्या? नहीं, मेरी सिर्फ एक ही मुलाकात हुई थी जब वो मुबारकबाद के लिए आए थे, तो उसमें इस हवाले से कोई बात नहीं हुई। जो एफसी पर हमारे जवान शहीद हुए थे, चेक पोस्ट पर खुदकश हुआ था, तो वहाँ पर इनफॉर्मल सी मुलाकात में हमारी डिस्कशन इस पर हुई थी और मेरा यही मौक़िफ़ था। वो अगर आपको दावत दें तो आपको जाने में एतराज़ तो कोई नहीं है, क्योंकि लास्ट सीएम तो गए थे, आपको तो कोई एतराज़ नहीं है किधर उनके पास जाने में। नहीं, लास्ट वो टाइम मेरे वो पास आपके पास आएंगे, आए थे। मैं क्यों उनके पास जाऊँ? अच्छा, आप उनके पास नहीं जाएंगे? नहीं, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, वो आएगा। ठीक, वो आपके पास। अच्छा अब्दुल्ली साहब, एक जो प्रॉब्लम ग्राउंड पे तरीके से आप इस वक्त है, आप स्ट्रीट मूवमेंट की बातें कर रहे हैं, जिस तरह पीडीएम बनी तो मुखालिफ ख्याल जमातें भी इकट्ठी हुई। एक मिसाल उसकी मौलाना फजलुर रहमान है। खान साहब का बार बार पैगाम सुनते रहे जी, खासकर सीएम जो पिछले गंडापुर साहब थे, कि वो अपने हल्के की पॉलिटिक्स से निकले और नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर आए, जिसका मकसद ये था कि मौलाना साहब के साथ अलायंस बनाया जाए। आपने जिरगे के लिए उनको फोन किया या बाकी आपका उनसे रब्ता हुआ? मौलाना साहब हूँ या बाकी जो अपोजिशन जो आपके हम ख्याल नहीं है, जिस तरह चगजई साहब हैं या अल्लामा राजा नासिर बास हैं, तरीके इंसाफ उनको इकट्ठा नहीं कर पा रही, हालांकि उनके भी गवर्नमेंट के साथ वो नहीं बैठे हुए। तो क्या ये तरीके इंसाफ की नाकामी है? जिस तरह पीडीएम आपके खिलाफ इकट्ठी होगी, आपकी गवर्नमेंट गिराने में कामयाब हुई, आप उस तरह का पॉलिटिकल अलायंस अभी तक नहीं बना पाए जिसमें समझा जाए कि पूरी ऑपोजिशन है, क्रॉस द बोर्ड है, बिला तफरीक है। देखिए, हमारी गवर्नमेंट इन्होंने नहीं गिराई थी और ना ये गिरा सकते थे। जिन्होंने गिराई वो पूरी दुनिया जानती है। दूसरी बात के जो कानूनी तौर पर हुकूमत हो उसको गिराया जाता है, ये तो कानूनी है ही नहीं, इलीगल गवर्नमेंट है। इसको मौलाना साहब के वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान उनके साथ राब्ते में है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोई पेशरफ्त होगी उसमें इंशाल्लाह। तो आपकी जमात के ऊपर एक और इल्ज़ाम जो लगता है, जो आपके मुखालफिन लगाते हैं, वो है कि आपका टीटीपी के हवाले से, दहशतगर्दों के हवाले से एक सॉफ्ट कॉर्नर है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान को एक दहशतगर्द तंजीम तस्वुर करते हैं? 100% करते हैं। तो लेकिन आप चाहते हैं कि अगर कोई भी मामला हल करना है तो मुज़ाकरात इनसे होने चाहिए, इनके अगेंस्ट किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, क्या है सही? देखें, ऑपरेशन के कई अकसाम होते हैं। ठीक। जो मिलिट्री ऑपरेशन ये अनाउंस करते हैं वहां पर इमरजेंसी लग जाती है, फिर ये इंसान और जानवर में फर्क नहीं करते। वहां पर जो बंदा रास्ते में आता है वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, इससे दहशतगर्दी बढ़ती है, क्योंकि वो बदले की आग में फिर जो है हुकूमत को भी निशाना बनाता है और इनको भी निशाना बनाता है। ये मिलिट्री ऑपरेशन में ड्रोन्स करते हैं। ड्रोन ये नहीं देखता कि नीचे जो है कौन है, साथ में कौन है, और वहां पर अभी 21 बंदे, मासूम बंदे एक ड्रोन में शहीद हो जाते हैं, लेकिन इनसे ऑफिशियली जो है वो माजरत भी नहीं हो पाती कि हमारी कौम से करें कि गलती हो गई, माफ़ी मांगे। तो फिर लोग और गुस्सा हो जाते हैं, फिर दहशतगर्दी मजीद बढ़ती है। इसके लिए जो है प्लान, हम ये बार बार कह रहे हैं कि हमें बिठाएं ताकि मुश्तरका एक प्लान हो, फिर आप पर उंगली नहीं उठेगी, हम सब पर उठेगी कि आप सब ने जो है मुश्तरका प्लान बनाया था, हमारा तो इसमें काम नहीं था। बहरहाल वो जब हम बैठेंगे तो बाकी चीज़ें वो वहाँ पर मीडिया पर नहीं बता सकते, या
जो है खुले नहीं बता सकते, लेकिन एक प्लान बन सकता है इनको ख़त्म करने के लिए, लेकिन ये सीरियस ही नहीं है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को ख़त्म करने में लगे हुए। इनका मकसद दहशतगर्दी खत्मा नहीं टीटीपी है। का एक मौक़िफ़ ये है, टीटीपी का एक मौक़िफ़ ये है कि जी हम आईन पाकिस्तान को नहीं मानते, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को नहीं मानते, और यहाँ पे शरीयत का लॉ जो है वो हम इम्प्लीमेंट करवा के रहेंगे। देखिए खान साहब, इमरान खान ने कभी टीटीपी की बात नहीं की। उनके आप सारे बयान देख लें, जेल में मेरे सामने जो उन्होंने दिए, 3 फरीक कहते हैं इसमें। कहते हैं अफगान हुकूमत से बात करो, जो सूबाई हुकूमत है वो इस पे इन्वॉल्व हो, विफाक उसके साथ इन्वॉल्व हो, और जो कबायली हमारे माहिदीन है वो इन्वॉल्व हो। वो इनके दरमियान मुकालमे की बात करती है। टीटीपी के साथ मुकालमे की बात कब की है खान साहब? मेरा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ था, वो ये था कि टीटीपी का ये कहना है, आप इनमें से किसी एक शर्त के ऊपर भी उनको स्पेस देने के लिए तैयार तो नहीं है? क्या आपकी पोजीशन ये है? देखें, टीटीपी के अलावा जिसने सारी उम्र जो है बंदूक भी ना उठाया हो, वो मेरे मुल्क का आईन नहीं मानेगा। वो अगर हमारे मुल्क का झंडे की बेहुरमती करेगा, अगर वो मेरी कौमी तराने की बेहुरमती करेगा, उससे मैं कोई बात नहीं करूँगा। ठीक। अगर आप कहेंगे कि हम सड़कों पे निकल के इमरान को रिहा करा लेंगे, तो मुझे नहीं लगता, अनटिल अनलेस आपके एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक नहीं होते। तो क्या इस पे भी कोई ये आप सवाल कर रहे हैं, तजवीज दे रहे हैं? नहीं, अब देखें ना, मंसूर साहब के सामने बैठ के मुझे लगता है मैं प्रोग्राम में कर रहा हूँ। लेकिन ये कि मैं तो एक सहाफ़ी के तौर पे जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो क्या ये पीटीआई तय कर चुकी है कि सिर्फ उससे टकराना ही है, या कोई रास्ता दरमियान का भी निकालना है? देखें, अब आपकी बात ये सही है कि टकराना तो नहीं है, लेकिन मज़ाहमत भी नहीं छोड़नी, और मज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी। और जब हम जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं उनसे मुज़ाकरात की बात करते हैं, तो अपने लोगों से तो मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन उस लेवल पर कि लेवल बराबर हो, हाथ ऊपर नीचे ना हो, उस पर करेंगे और साहिब इख्तियार के साथ। सेम से ये बताएं, थर्सडे को अब 2 थर्सडे आप नहीं गए अडियाला, तो अब मायूस हो गए हैं कि आपके नहीं होती मुलाकात को नहीं जाना, या आप कुछ और ऑल्टरनेट प्लान? और ये समीना के सवाल के साथ मेरा भी ऐड कर लें कि जो आप नहीं जा रहे, इस पे कुछ ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि शायद कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है जिसकी वजह से आप नहीं जा रहे। लास्ट टाइम जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर एहतजाज था और अडियाला के बाहर, तो एक शर्त शायद ये रखी गई थी कि आप ना आए वहां पर, तो आप नहीं आए थे। नहीं, ऐसी किसी ने ऐसी मजाक किया होगा। इस दफ़ा ये 2 दफ़ा जो है पार्टी की तरफ से नाम नहीं आया, इसलिए नहीं गया। और पिछला जो हफ्ता था वो भी मैं इधर ही आ रहा था, लाहौर, लेकिन यहाँ की तंजीम ने कहा कि हम रेडी नहीं हैं, तो आप बराए मेहरबानी नेक्स्ट वीक आ जाए, तो इसलिए इस वीक आ गया। और वहाँ पर पंजाब में है ना अडियाला, तो सीएम पंजाब से आपने राब्ता किया कि भाई मैं आ रहा हूँ, मैंने मिलना है? वो बीइंग सीएम, आप भी एक सीएम है, तो आप दोनों के दरमियान एक वो बात तो हो सकती है इस पे? नहीं, मैंने से आपकी अब तक कभी बात हुई है किसी मौजू पे? कोई आप जब जैसे इकट्ठे हुए उसमें एक मीटिंग हो चुकी है? नहीं, वो जो एनएफसी, उसमें वो वीडियो लिंक पे थी। नहीं, अच्छा, एनएफसी में वो गलत कोट हुआ था। एनएफसी में फाइनेंस मिनिस्टर होता है, उसमें वज़ीर-ए-आला नहीं होता। चूंकि मैं खुद फाइनेंस मिनिस्टर भी हूँ और मुराद अली शाह भी खुद फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो इस वजह से वन ऑन वन नहीं हुई अभी तक? नहीं, वैसे राब्ता कोई उनसे बात नहीं, राब्ता कुछ भी। आप जब यहाँ आए थे तो आपने ऑफिशियली उन्हें आगाह किया? हाँ, ऑफिशियली भी आगाह किया था मैंने। अडियाला जेल के लिए भी ऑफिशियली उनको क्या खत लिखा रिस्पॉन्स था उनका? नहीं किया, उसका जवाब नहीं आया। नहीं किया। आपने खत लिखा, उसका जवाब नहीं दिया? हाँ, मैं कोट लखपत जेल भी जाना चाह रहा था, अपने जो हमारे वहाँ पर लीडरशिप है, सिरान है, उनसे मिलने के लिए, और उनका भी बाकायदा मैंने कहा था, लेकिन उसकी इजाजत भी नहीं दी। तो जब कैंट में आपको रोका गया तो आपने उन्हें बताया कि मैं सीएम हूँ? नहीं, कैंट में मुझे नहीं रोका गया। जब आप वो सरफराज उमर चीमा से मिलने नहीं, मैं गया ही नहीं वहाँ पर। मुझे ये बताया उन्होंने कि उन्होंने कहा इजाजत नहीं, हम इजाजत नहीं है। यानी वो आपको इजाजत नहीं? हाँ, मैंने इनको कहा कि आप रिटर्न में भेजें वरना मैं आ रहा हूँ, लेकिन उन्होंने रिटर्न भी नहीं भेजा,
बहरहाल ये इम्पैक्ट हम खत्म नहीं कर रहे थे इस इवेंट का, तो इस वजह से जो है हमने वहाँ रेजिस्ट नहीं किया। पंजाब गवर्नमेंट ने आपके लिए एक पैगाम दिया कि आप आए हैं लाहौर, आपने घुमा फिरा है, विजिट किया है, कैसा लगा लाहौर आपको? आप उनकी वो कहते हैं कि जी आप देखें हमने कितनी तरक्की की है यहाँ पे, हमने लाहौर को क्या ट्रांसफॉर्म कर दिया है, तो बतौर CM KP कुछ चीजें यहाँ से देख के जा रहे हैं कि हाँ ये पेशावर में या दीगर शहरों में भी इम्प्लीमेंट हो? अच्छा, यहाँ पर 3 इश्यूज थे। लाहौर तो लाहौर है, लेकिन इस दफा मैंने इसलिए नहीं देखा कि सारे रास्ते इन्होंने बंद किए हुए थे। अच्छा, दूसरी बात कि जो ग्रीनरी में देखना चाह रहा था वहां पर जो है एक तस्वीर लगी होती थी और एक ही चेहरा उस पर होता था, हाँ दूसरा था नहीं। और मेरे ख्याल में ये आवाम का पैसा है मुसलसल, जो है वो तस्वीरें, अच्छा नहीं वो तो नेचुरल है। खैर, दूसरी बात ये है कि ये हकीकत है कि लाहौर डेवलप्ड है, लेकिन रोडों से कौमें नहीं बनती, ये मेरे लीडर कहते हैं। दूसरा, बेहतरीन बत्तियां लगी हुई हैं, लेकिन बदकिस्मती से इनकी सियासी बत्ती बुझ गई है। मतलब ना बत्तियां इनको बचा पाई है, ना सड़कें इनको बचा पाई हैं। तो इमरान खान साहब ने जो सबसे बेहतरीन काम किया है वो लोगों को शऊर दिया है। अभी लोग समझ गए कि मतलब अगर कोई रोड बना रहा है ये इसका जो है हक है कि वो बनाए, कोई बत्तियां लगा रहे ये इसका हक है, ये आवाम के पैसों से लगा रहे, अपने जेब से तो नहीं ला रहे। लेकिन हमने उस बंदे को सपोर्ट करना है, वो हमारा लीडर है जो मुल्क और कौम का सोचेगा, और वो सिर्फ इमरान खान। तो ये जनाब आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, वो मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर जो है वो क्या राय रखते रहे। अच्छा, मैं ज़रा इसको थोड़ा सा मैं एवेल्यूएशन में जाऊँगा, या मैं चंद ऐसे पॉइंटर्स जो आपने शायद हो सकता है इस सारी गुफ्तगू में ना सुने हो, मैं उनको मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले, आई फाउंड हिम टू बी अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। वरना आम तौर पे हम लोग जब पॉलिटिशियंस वगैरह से मिलते हैं, और ख़ास तौर पे वो पॉलिटिशियंस जो मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर चले जाएँ, तो उनमें से कईयों के दिमाग भी ख़राब हो जाते हैं। हकीकत है ये, मतलब वो हमने तो अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि हम जब इन लोगों से मिलते हैं तो हमने इनको अपोजिशन में भी देखा होता है, और जब ये हुकूमत में आते हैं तो इनके रंग बदल जाते हैं। तो और ये सब तमाम जमातों के साथ है। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2018 में जब इन लोगों की गवर्नमेंट आई, तो वो लोग जो उससे पहले कभी किसी ओहदे पे नहीं रहे थे, उनको हमने उससे पहले 2017, 16, 15, 14 उसके अंदर जब हमने देखा था, तो उस वक्त रवैये कुछ और होते थे। जब 2018 में वो गवर्नमेंट में आए तो उनके रवैये बिल्कुल तब्दील हो गए। उसके बाद 2024 के अंदर जब इंतखाबात हुए और नून लीग की गवर्नमेंट आ गई, तो नून लीग के कई ऐसे लोग जो पहले बड़े डाउन टू अर्थ हुआ करते थे, तमीज़ के दायरे में रहते थे, उनके अंदर फूफा आ गई। वो आज भी है, दिमाग ख़राब हो गए हैं चंद लोगों के, तो हो जाते हैं, डजेंट मैटर। तो एक ऐसा शख्स जिसका ताल्लुक जो है वो फाटा के इलाके से हो और उसके बाद वो CM बन जाए, इट कुड बाउंड टू हैपन कि एक्चुअली उनके दिमाग के अंदर भी जो है वो कोई प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन आई फाउंड हिम टू बी अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। सबके साथ बड़े इज्जत एहतराम के साथ मिले, ही हैड अ वेरी स्माइलिंग फेस, और बड़े तमीज़ के साथ जो है कोई वो जिसे कहते हैं नक कुची करके गल नहीं कर रहे थे, बड़े वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। मेरे साथ तो कम से कम उन्होंने बड़े अच्छे इज्जत के साथ जो है उन्होंने ट्रीट किया, और नॉट जस्ट देम बल्कि इवन उनका जो बाकी जो स्टाफ भी वहाँ पे मौजूद था, मेरे साथ उन्होंने कम से कम बहुत अच्छा इंटरेक्शन किया। अब जब गुफ्तगू का आगाज़ हुआ तो ऑब्वियसली सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो लाहौर के हवाले से था, लाहौर के विज़िट के हवाले से था। उन्होंने कहा कि जनाब हमारे मुझे इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। सबसे पहले उन्होंने तस्दीक की इस बात की कि पंजाब की गवर्नमेंट जो है उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड अब कर रही है, विच इज़ अ गुड थिंग, अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने साथ साथ कहा कि जी वो जो सिक्योरिटी है वो हमारे कारकुनों को मुझसे दूर भी रखती है। अब एक्चुअली ये भी मेरे ख्याल में एक मजबूरी होती है कि आपको नहीं पता, यू कैन आइडेंटिफाई कि ये PTI का कोई वर्कर है या ये कोई दहशतगर्द है। अब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जो कत्ल की एक दास्तान है वो आपके सामने है कि वो एक जलसे से फारिग हुई थी, और लग यही रहा था कि तमाम के तमाम अफराद जो आसपास मौजूद हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, लेकिन उन्हीं में से एक दहशतगर्द ने जो है वो टारगेट किया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को। सो मेरे ख्याल में CM KP के लिए अगर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कोई इंतजाम किए जाते हैं तो दैट्स अ गुड थिंग। मैं ज़रा टॉपिक टू टॉपिक इसके ऊपर मैं जो है मैं गुफ्तगू करूँगा। दूसरा, मैंने उनसे पूछा, दीगर जर्नलिस्ट भी क्वेश्चंस कर रहे थे कि जी आपकी मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा से कोई अभी तक कोई मुलाकात हुई है? तो उन्होंने कहा मेरी आज तक मरीम नवाज़ साहिबा से मुलाकात नहीं हुई है। हमने अलबत्ता आने से पहले इनकी गवर्नमेंट को ख़त ज़रूर लिखे थे कि जी हम इस तरह जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनको पंजाब गवर्नमेंट को पहले से ही जो है वो इस बारे में पता था कि उनकी मुलाकात हो रही है। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं मुख्तलिफ घरों के अंदर मुख्तलिफ जो हमारे वर्कर्स वगैरह थे या पार्टी के रहनुमा थे उनसे मुलाकात के लिए मैं गया हूँ, लेकिन एक मुलाकात एक्चुअली पिन पॉइंट किया गया, मेरे ख्याल में उमर दराज गोंदल साहब ने वहाँ पे इसको पिन पॉइंट किया कि जी चौधरी परवेज़ इलाही साहब से आपकी मुलाकात क्यों नहीं हुई? आप आखिर वो भी तो पार्टी के अंदर हैं।
تو انہوں نے کہا ہاں واقعی، مطلب جیسے ان کو خود بھی یہ بات یاد نہیں تھی کہ ہاں میری ان سے تو ملاقات نہیں، میری ان سے ملاقات ہونی چاہیے. تو پھر انہوں نے اپنے اسٹاف میں سے کسی کو کہا کہ جی آپ ان کے ساتھ بھی میری ملاقات جو ہے وہ ارینج کریں. ایون دو مطلب جب آپ باقی رہنماؤں سے مل رہے ہیں تو چودھری پرویز الہی صاحب صدر رہے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو ان کے ساتھ تو ملاقات ہونی چاہیے. اب اس چیز نے ذرا ایمبیگوٹی میں ڈال دیا کہ ایکچولی کیا چودھری پرویز الہی صاحب مزید اب ایکٹیو ہیں بھی پی ٹی آئی کے اندر ہے یا نہیں، کیونکہ نظر تو وہ کہیں نہیں آتے، ایکٹیویٹی کے حوالے سے تو کہیں نظر نہیں آتے. اس کے علاوہ انہوں نے پنجاب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ جو ایک پنجاب اسمبلی کے اندر ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، مختلف لوگوں کی جانب سے جو کویشچنز کیے گئے تھے ڈرگ کے حوالے سے، وہ تو انہوں نے کہا دیکھیں یہ بلو دا بیلٹ قسم کے کویشچنز ہیں. پھر اس کے بعد مینا خان آفریدی نے جس قسم کا کامنٹ کیا کہ جی میں پھر گراج میں کیا ہوا تھا میں بتاؤں، اور بچے کی پیدائش کس طرح ہوئی تھی پھر میں بتاؤں، اس کے اوپر ایکچولی انہوں نے کنڈیم کیا اس بات کو. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کامنٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ اپنی ہی پارٹی کے ایک رہنما کے بارے میں انہوں نے یہ بات کی کہ یہ کامنٹ، اس طرح کا کامنٹ جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے تھا. انہوں نے کہا جب میں پنجاب اسمبلی میں انٹر ہو رہا تھا تو وہاں پہ جس قسم کا ماحول بنا ہوا تھا، دھکم پیل ہو رہی تھی، بلکہ مجھے بھی جو ہے وہ ایک دو دھکے لگے تو میں پھر پیچھے ہٹ گیا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں پہ جو ہے کوئی بدمزگی پیدا کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جائے گی. تو اس لیے وہاں سے ہماری وہ جو انٹری ہوئی پنجاب اسمبلی کے اندر وہی بڑی فلمی انداز میں ہوئی، تو ٹیمپرز ور ویری ہائی. اس کے بعد چند صحافیوں کی جانب سے یا صحافی نما افراد کی جانب سے جو کویشچنز کیے گئے تو جذبات کے اوپر جو ہے وہ جذباتی پن کے اندر آ کے جو ہے وہ اس قسم کا کامنٹ کر دیا گیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، وچ از اے ویری گڈ تھنگ. اس کے علاوہ پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے میں نے ان سے کہا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کا کوئی ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ ہونا چاہیے، یو بینگ اے سی ایم اینڈ مریم نواز بینگ اے سی ایم. انہوں نے کہا جی بالکل ہونا چاہیے، میں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں رکھتا، بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں تو انوائٹ کروں گا، میں مریم نواز صاحبہ کو، مسلم لیگ نون کو میں انوائٹ کروں گا کہ آپ پشاور میں آئیں، پشاور میں آ کے جلسہ کریں. آپ کو گاڑیاں بھی ہم پرووائڈ کر کے دیں گے، آپ کو اسٹیج بھی ہم پرووائڈ کر کے دیں گے، کھانا بھی ہم پرووائڈ کر کے دیں گے، ہم پوری طرح آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اگر آپ پشاور میں آ کے جلسہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر مجھے بھی مینار پاکستان کے اوپر جو ہے وہ جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے. اس کے علاوہ پنجاب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میرا دورہ کافی اچھا رہا ہے، موبلائز کیا ہے ہم نے اپنے ورکرز کو. اس کے بعد چند صحافیوں کی جانب سے ان سے یہ بھی کویشچن کیا گیا، میرے خیال میں چودھری غلام حسین صاحب، ہاں انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ کیا ہے، یہ جو ہے وہ اس کا فائنل کیا ہوگا، اس کا ڈیڈ اینڈ کیا آئے گا، کس طرح آئے گا، عمران خان کو جو ہے وہ جیل سے کس طرح باہر نکالا جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ کیا اس طرح ہوگا کہ آپ اپنی اسٹریٹ ایجیٹیشن وغیرہ جو کریں اور اس کے بعد ایک ایسا کوئی موقع ہے کہ آپ جائیں اور جا کے جیل کا دروازہ کھولیں اور عمران خان کو باہر نکال لیں. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ موقع جو ہے وہ ابھی نہیں آیا اور یہ ابھی یہ ممکن نہیں ہوگا جو آپ ذہن میں رکھیں. وہ میرے خیال میں چند لوگوں کی جانب سے ذرا ان کو پمپ اپ کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی تھی، بٹ ہی ایکچولی ہیلڈ ہز نروز. میرے خیال میں وہ چاہتے تو وہ جذباتی پن کے اندر کوئی اس کو کامنٹ دے سکتے تھے، لیکن میرے علاوہ اور بھی لوگوں کی جانب سے ریکارڈنگ جو ہے وہاں پہ چل رہی تھی. سو آئی تھنک یہ ایکچولی چیکڈ ہز ورڈز کوائٹ وائزلی کہ میں کوئی ایسی ویسی کمٹمنٹ نہ کر دوں، ایسی ویسی جو ہے میں کوئی بات نہ کر دوں. اس کے علاوہ میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا جی یہ فواد چودھری صاحب کی جانب سے جو فارمولہ ایک پیش کیا گیا ہے مذاکرات کے حوالے سے، بات چیت کے حوالے سے، کیا فواد چودھری صاحب نے آپ سے کوئی رابطہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھ سے فواد چودھری صاحب کا ابھی تک جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے اور میرے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. اس کے بعد سوال ان سے کیا گیا کہ علیمہ خان صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ جناب میرا جو ہے وہ ہماری نظر میں جو مذاکرات کی بات کرے گا وہ عمران خان کے قریب نہیں ہو سکتا. تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے ان کا پاکستان تحریک انصاف میں کوئی رول نہیں ہے. علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ پارٹی پالیسی کا اعلان نہیں کرتی، پارٹی پالیسی کا اعلان جو ہے وہ عمران خان صاحب کرتے ہیں اور ان کے مطابق آخری پیغام جو ہمیں آیا ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے آیا ہوا ہے یا علامہ راجہ ناصر عباس کے حوالے سے آیا ہوا ہے کہ جناب کوئی بھی مذاکراتی جو عمل ہے وہ یہ دونوں افراد اس کے ذمہ دار ہیں. سو ہم تو اسی کے مطابق چلیں گے. تو انہوں نے ایک قسم کا علیمہ خان صاحبہ کی بات کو جو ہے وہ ڈاؤن پلے کیا کہ نہیں مطلب یہ میرے پاس ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ میں ایسی کوئی انسٹرکشنز جو ہے میں فالو کر رہا ہوں. سو انہوں نے مذاکرات کے اس عمل کو جو ہے وہ ایکچولی ایک موقع دیا ہے. دوسری بات یہ کہ ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا اس کی کوئی ٹائم لائن ہے، مطلب چلیں ٹھیک ہے آپ اسٹریٹ ایجیٹیشن کریں گے، آپ مزاحمت کریں گے کب تک کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارا مین مقصد جو ہے، ایکچولی انہوں نے مریم نواز کا کوٹ جو ہے وہ یہاں پہ بولا جو کہ میرے خیال میں شاید ان کو خود بھی شاید آئیڈیا نہیں ہوگا مے بی کہ یہ مریم نواز نے ایکچولی یہ بات کہی تھی کہ جی جب وہ اس وقت مزاحمت کیا کرتی تھی کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. تو اس کے اوپر انہوں نے ایکچولی یہ لائن بولی، انہوں نے کہا جب مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. تو یہ بیسکلی ان کا فی الحال جو ہے وہ کوئی پروگرام ہے. کسی قسم کا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں تھی کہ جناب فلاں ڈیٹ سے ہم لوگ جو ہے وہ کوئی بڑا احتجاج کرنے لگے یا لانگ مارچ کرنے لگے، اس قسم کی جو ہے وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ
कोर कमांडर पेशावर के हवाले से मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा जी कोर कमांडर पेशावर के साथ आपकी एक मुलाकात हुई, उन्होंने खुद भी तस्दीक की, उन्होंने कहा अब तक मेरी एक ही मुलाकात हुई है, वो मेरे पास तशरीफ़ लेकर आए थे। तो मैंने कहा जी कोर कमांडर पेशावर अगर आपको अपने पास बुलाते हैं तो आप क्या उनके पास जाएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, जब भी उन्होंने मिलना हो वो मेरे पास तशरीफ़ लेकर आए। तो ये बड़ा कैटेगोरिकली जो है उन्होंने रेड लाइन इस मामले के ऊपर जो है वो ड्रॉ की। उसके बाद मैंने उनसे सवाल किया कि जी आर्मी चीफ के हवाले से कि गड्डापुर साहब इससे पहले जब CM KP थे तो अक्सर औकात मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर जो है उनकी ऐसी मुलाकातें भी होती थी जिसमें उस वक्त जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं वो उस मीटिंग में बैठे होते थे। तो बहुत से लोग उनके ऊपर ये तनकीद करते थे कि जब आप जाके मिलते हैं आसिम मुनीर साहब से तो आप मामला को रिजॉल्व क्यों नहीं करते, या अपने जो कंप्लेंट्स हैं वो आप क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा जी आपकी अगर मुलाकात का मौका मिला आपको तो क्या आप भी ये करना चाहेंगे? तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी देखें मैं अपने सूबे के मसाइल जो है उनके सामने ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। तो मैंने कहा जी सियासी मसाइल क्या वो भी डिस्कस करना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, वो मेरे ख्याल में सूबे के मसाइल जो है वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। इस किस्म की चीज़ें या इस किस्म के जो डिस्कशंस हैं वो मैं इमरान खान साहब के लिए मेरी एक लिस्ट तैयार है, मैं उनसे करना चाहूँगा अगर उसका कोई मौका मिलता है तो। उसके बाद तीरा के हवाले से ख़ास तौर पे बड़ी डिटेल डिस्कशन, बल्कि मेरा जो क्वेश्चन आंसर आपने देखा भी उनसे हुआ, वो जिस जगह पे मुझे लगा कि एक्चुअली उनके पास एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं था, कम से कम मैं मुतमईन नहीं हुआ। आप अगर हो गए हो तो वो और बात है, लेकिन मुझे लगा कि मैं मुतमईन नहीं हो सका। और वो ये था कि मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी कि आपके जो एतराज़ आता है वो ये है कि जनाब एक तो मुनशियात का काम होता है, स्मगलिंग का काम होता है, असलहा स्मगल किया जाता है, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का काम जो है वो किया जाता है। उसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया जी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 100 साल का एक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया था कबायली इलाकों के साथ कि जनाब ये टैक्स फ्री जोन्स होंगे और यहाँ पे जो है वो कोई कस्टम वगैरह का काम नहीं होगा। तो 1947 के अंदर ये बात हुई थी, तो 2047 तक का हमारे पास टाइम है, हम इसके ऊपर जो है वो कुछ नहीं कर सकते। उसके ऊपर मैंने भी एक दो जर्नलिस्ट ने और भी कहा कि जनाब अब तो वो कबायली इलाके जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुके हैं, तो वही लॉज एंड रेगुलेशंस जो है वो उन जगहों के ऊपर भी अप्लाई होने चाहिए। तो उसका उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक वो आप फाटा के अवाम को जो है उनका हक नहीं देंगे या आप उनको कमाई का कोई और ज़रिया नहीं देंगे तो तब तक ये इस फॉर्मूले को जो है वो आप एकदम जो है वो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मेरे ख्याल में दिस वाज अ वीक आंसर। मेरे ख्याल में नाउ ही वाज प्लेइंग फॉर द गैलरी कि उनकी ज़ाहिर बात है, उनकी कंस्टिट्यूंसी है, फाटा के एरियाज़ जो है उनका हल्का वहाँ पे है, ख़ानदान वहाँ पे है, वो कोई ऐसा कमेंट इन लोगों के हवाले से नहीं करना चाह रहे थे। कस्टम पेड गाड़ियों का या दीगर जो टैक्स फ्री एरियाज या आप स्मगलिंग कह लें या जो भी कह लें, उसके ज़रिए जो सामान आता है ना वहाँ पे बहुत बड़ा कारोबार है इसका। तो मेरे ख्याल में वो किसी भी तबके को नाराज़ नहीं करना चाहते। यहाँ पे आके CM KP जो है मुझे लगा कि उनके पास कोई ठोस इसका जवाब नहीं था कि वो इसको जस्टिफाई कर सकते। दूसरा, ड्रग्स के हवाले से उन्होंने कहा कि जी मैं पूरी तरह ड्रग्स के हवाले से जो भी वो कार्रवाई करना चाहें, इस्टेब्लिशमेंट फौज कोई कार्रवाई करना चाहे, हम पूरी तरह तैयार हैं, हमें कोई इस पर एतराज़ नहीं है। और उन्होंने कहा कि हम तो एक्चुअली वहाँ पे जो है मुख्तलिफ़ किस्म की काश्त जो है वो हम लोग करना चाह रहे थे। ज़ाफ़रान की काश्त जो है हम वहाँ पे करना चाहते थे। तीरा की जो वैली है वो ज़ाफ़रान की काश्त के लिए बहुत अच्छी जगह है, लेकिन यहाँ पे जो है वो इल्ज़ामात ये लगा दिए जाते हैं कि जनाब यहाँ पे मुनशियात का काम होता है। तो हम तो खुद मुनशियात के ख़िलाफ़ हैं, हम तो बल्कि फैसिलिटेट करना चाहेंगे अगर कोई मुनशियात के ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म का कोई ऑपरेशन होता है तो हमें इसके ऊपर जो है वो कोई एतराज़ नहीं है। इसके अलावा जो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उसके हवाले से भी सवाल किया गया कि जी मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा जी हमाद अज़हर साहब अंडरग्राउंड है, आलिया हमज़ा साहब अंडरग्राउंड हैं, दीगर रहनुमा कोट लखपत जेल के अंदर हैं, तो किस तरह पंजाब के मामला को हैंडल कौन करेगा? तो उन्होंने कहा नहीं, वो आलिया हमज़ा साहबा कर रही हैं ना। मैंने कहा जी वो लेकिन फिज़िकली तो यहाँ पे नहीं है, वो जो कुछ भी कर रही हैं वो फ़ोन के ऊपर, बातचीत के ऊपर या मैसेजेस के थ्रू ही कर रही है ना। तो उसका उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास और भी लीडरशिप है यहाँ पे पंजाब को हैंडल करने के। ये भी मेरे ख्याल में एक वीक जवाब था, उनके पास ऐसा कोई जवाब नहीं था। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली जो डिस्कस हुआ, क्योंकि वो फॉर्म 47 का बार बार जिक्र कर रहे थे और आप जानते हैं कि मुख्तलिफ अपनी मीडिया टॉक्स के अंदर जो है उसका जिक्र आता है, तो मैंने उनके साथ एक चीज़ शेयर की। मैंने उनसे कहा कि जी जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं मलिक अहमद खान साहब, वो ये क्लेम करते हैं कि पूरी पंजाब असम्बली में जितनी टोटल पिटिशंस हैं इलेक्शन से रिलेटेड, उसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की